Today we will look at the classification of the numbers in number system. While going through number system, we will come across all these terms. Let's say natural number, whole numbers, integers, and so on. Let's see one by one. Natural numbers, as we know, are all the counting numbers, means 1, 2, 3, 4 and so on up till plus infinity, and no fractions and decimals are allowed in natural number. Similarly, whole number, the entire list of natural number and 0 will make the entire list of whole numbers, 0, 1, 2, 3, 4 up till your plus infinity. Coming to integer, all the numbers from minus infinity to plus infinity will form your integers, and again no decimals and fractions are allowed, means 0, 1, 2, 3 and minus 1, minus 2 and so on. And 1 से लेकर plus infinity will be your set of positive integers. फिर -1 से minus infinity will be your set of आपको negative integers, and 0 से लेकर plus infinity will be your आपको set of non-negative integer. Just be careful about this, that 0 is neither a positive integer nor a negative integer. वो इसको अलग से ब्रैकेट में रखेंगे जो कि non-negative integer होगा. और अगर बैकवर्ड सोचा जाए, we can say all natural numbers are integers, all whole numbers are also integers and so on. Let's say, और देखते हैं. Come to rational numbers. Rational numbers are numbers which can be represented in the form of p by q, and where q should not be equal to 0. आपका denominator कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. For example, can I say 5 is a rational number? Since I can write it in terms of p by q. अब 5 को 5 by 1 लिख सकते हो. Similarly, -2 is also a rational number. Since I can write it as -2 by 1. 0 is also a rational number. Since I can write it as 0 by 1 and so on. 1.5 is also a rational number. Since I can write it as 15 by 10. 2.25 is also a rational number. I can write it as 225 upon 100 and so on. हाँ, तो ये सारे ही रैशनल नंबर बनेंगे. अभी फिर से सोचना चालू किया जाए, हाँ, तो वी कैन से कि जो नेचुरल नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 5 मेरा नेचुरल नंबर था लेकिन वो रैशनल नंबर भी है. हाँ, जो इंटीजर्स होगा मतलब कि जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो भी रैशनल नंबर बनेगा. हाँ, ये होल नंबर के अब ब्रैकेट में आता था, आपको ये भी रैशनल नंबर है और अलग से डेसिमल्स भी आते हैं. हाँ, तो डेसिमल्स वाला पार्ट देखते हैं. डेसिमल्स के बेसिकली आपको दो पार्ट है. योर फर्स्ट पार्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड सेकंड पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग के एग्जांपल चाहिए, नाम से पता चलता है टर्मिनेट मतलब रुक जाना. हाँ, तो 1/2 is an example of terminating decimal since this is equal to 0.50. आप आगे जाओगे तो इसमें सिर्फ 0 मिलने वाला है, which is of no relevance. हाँ, similarly 1/4 will be आपको 0.25, आगे जाओगे तो सिर्फ 0 मिलेगा. फिर let's say अगर बोलो 1/8 बोलूं तो 0.125 and so on. अगर 5/2 बोलूं तो 2.50 and so on. All these are examples of terminating decimals. Let's see the examples of non-terminating decimal. 1/3 is the best known example of non-terminating. Non-terminating मतलब रुकेगा नहीं, चलते चलेगा, infinite times तक repeat होगा इसमें. 0.33333 is an example of non-terminating decimal. ये infinite time पे चलेगा. Similarly, 1/6 is an example of also example of non-terminating decimal. 0.16666 and so on. 1/9 भी हो सकता है, 0.1111 and so on. अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप होते हैं, वो भी देख लेते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग के आपको दो टाइप, पहला टाइप होता है रिकरिंग और दूसरा टाइप होता है नॉन रिकरिंग.
हाँ रिकरिंग का भी एग्जांपल जस्ट देखा हम लोगों ने। हाँ रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब आपको इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, और रिकरिंग है मतलब कि उसमें या तो एक डिजिट या तो दो डिजिट रिपीट हो रहा होगा। हाँ तो मतलब ये जो था 1/3, हाँ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आपको रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिंस ये इनफाइनाइट टाइम आपको चलता है। सिमिलरली 5/11 will be 0.4545 and so on. हाँ this is also an example of recurring non-terminating decimal, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं and so on. हाँ नॉन रिकरिंग पे आए तो √2, √3, √5, √6, √7 all these are example of non-recurring and non-terminating decimal, क्योंकि आप जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसमें कोई पैटर्न नहीं चलेगा, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। हाँ तो ये सारे नॉन रिकरिंग हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं। अभी फिर से बैकवर्ड चल के देखते हैं। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है मैं इनको p/q के फॉर्म में लिख सकता है। हाँ तो कहना इसे ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि उनको लिख सकते हैं p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली जो रिकरिंग वाला पार्ट है आपने इसको भी तो p/q फॉर्म में लिख दिया है, तो ये भी मेरे को रैशनल नंबर ही होना चाहिए। हाँ लेकिन ये वाला जो पार्ट है आप इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये अलग से ग्रुप में जाएगा जो कि इरैशनल नंबर होगा। और when you merge रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, जब इन दोनों को मर्ज करोगे तो नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट मिलता है जो कि रियल नंबर बोलते हैं। तो अगर मैं फिर से आपको क्लासिफिकेशन देखूं तो कुछ तो ऐसा नजर आएगा। हाँ रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है तो सबसे ऊपर रहेगा। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है रैशनल नंबर, दूसरा हिस्सा है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर के भी दो पार्ट है, पहला पार्ट है इंटीजर्स, दूसरा पार्ट है डेसिमल्स। इंटीजर्स के नीचे होल नंबर भी आ जाएंगे और होल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। और डेसिमल्स में दो पार्ट यहां पर आते हैं, अभी जस्ट डिस्कस किया है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विल बी योर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, और दूसरा आपको रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विल बी योर एग्जांपल ऑफ आपको रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर में आएगा नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्लासिफिकेशन मेरे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में थ्रू आउट यूज होते रहेगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस हायरार्की वाला पार्ट कि ये ऊपर से नीचे कैसे जा रहा है, और यहां से भी समझ में आना चाहिए कि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, सारा नेचुरल नंबर इंटीजर भी होगा, सारा नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी होगा, और सारा नेचुरल नंबर मेरे को रियल नंबर भी होगा एंड सो ऑन। हाँ तो नीचे से भी आना चाहिए आपको समझ में और ऊपर से भी आना चाहिए। हाँ दिस फॉर्म्स योर एंटायर क्लासिफिकेशन पार्ट।